शादी के लिए पैसे लुक्स से ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं? If I'm a man and I'm looking for a woman, I think looks are more important than her having money. Yeah. It is important. It is important, yes. Dr. Saab, even for a girl or for a boy, money is more important or not? देखिए एक छोटी सी सिंपल सी कहावत है कि पैसा हो आपके पास गारंटी नहीं करता कि आप खुश रहो या खुश होगे, लेकिन पैसा नहीं है गारंटी है कि आप नाखुश हो. Which means that there is a particular value placed to money. It's the second best thing that is going around this world. The first is love, for sure, unconditionally, which is again very evasive and which is again, we human beings are not capable of loving. That's another topic altogether. पैसा बड़ा ज़रूरी है, second best, बहुत important चीज़ है. Okay, great. So money over looks, Varun? Yeah, so I think both matter, of course, and both matter to men and women. Interestingly, what we have seen on Julio, our AI matchmaker from all across our users, is that a lot of men actually want working women these days. So, which wasn't something maybe we had necessarily anticipated. लड़कों को भी लड़कियां चाहिए जो काम करती हैं. बिल्कुल. Because? पता नहीं है, शायद आज की डेट में मतलब जॉब्स इतनी इनसिक्योर हो गई हैं, कभी भी आप ले ऑफ हो सकते हो फ्रॉम द बेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड. सो शायद सिंगल्स चाह रहे हैं कि द अदर स्पाउस हेल्प्स देम आउट इफ देयर इज दे गो थ्रू समथिंग रफ इन देयर करियर्स. And what we also see is in many cases you have one partner, it could be the guy or the girl in the relationship, who has a steady job, and the other one is experimenting with a startup, trying something new. Myself, case in point. So I think that's वो शायद दूसरा reason है. Give the reason also, something adding to what he's saying. Very importantly, exactly what he's saying is 11वीं जमात तक लड़के जो हैं राजा बाबू होते हैं परिवार के. They live the prince life. सब नहीं मैम. Stall. I'll tell you the reason why. 12वीं में आते ही तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे, तुमको नौकरी कब कौन देगा, नाकारा, बदतमीज, बिल्कुल तुमको लड़की कौन देगा, तुम घर कैसे चलाओगे? Now that poor, exactly with reference to what he's talking about, is that life from that really nice, because North India again is we, like I said, there is a privilege to be a boy in the sense of North India. Coming back to 12वीं तक, so here starts the drudgery. Here starts, you are inundated with all that is expected out of you in terms of career, this, that and the other. दूसरी चीज क्या है? लड़का जो कमाता है वो लड़के के पैसे, वो भी लड़की के, जो लड़की कमाती है वो पैसे उसके. बेचारे, this poor guy has no time, no choice to say that I want to spend something. The other day I just had a case, this guy went and bought PSP, it's called PSP. He wanted to buy. Yeah. And this woman flipped. She said, you didn't even tell me, you didn't ask me from our budget. बेचारा कहता है अब ये है. तो ये जो आपका पॉइंट है, डबल इनकम इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट. नॉट ओनली दैट, एज पेरेंट्स आई फील इट्स हाई टाइम वी आस्क द गर्ल्स इन देयर 12th स्टैंडर्ड कि तुम घर कैसे चलाओगी, तुमको कोई लड़का भी नहीं देगा. इट्स हाई टाइम. इट्स हाई टाइम फॉर द बॉयज टू बी अ लिटिल बिट take it easy kind of thing. We have been too harsh on them. Kshitij, you said false. And that's fine. I mean, आपको क्यों लगता है? शादी के लिए I think me being a man मेरे लिए important है. But अगर मैं किसी I'm finding a woman to get married to, I would want her to work for sure. But मैं ये नहीं देखूँ क्या वो मेरे जितने पैसे कमा रही है. मैं बस ये चाहता हूँ घर पे वेली नहीं बैठी है. अगर मैं दिन में पूरे टाइम मेहनत कर रहा हूँ और मैं कमा के ला रहा हूँ और फिर मेरे पैसे भी उनके हैं और उनके भी पैसे बिल्कुल नहीं हो रहे हैं. सो आई जस्ट वांट अ लिटिल बिट ऑफ दैट इक्वालिटी. बट मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है हाउ मच शी इज अर्निंग. आई जस्ट वांट हर टू बी स्मार्ट इनफ कि वो कमा सकती है. एंड माई वाइफ, शी इज अ सर्जन. And when I met her, she was working as a consultant with a lot of these hospitals here in Delhi. तो मैंने बोला, बेबी पूरे दिन फ्री हो, मैं काम कर रहा हूँ. She's like, baby what's up? मैं कहा, बेबी तो हसल कर रहा है, बेबी को काम है. मैं कहा, you get a job right now. So she's gotten a job and she's working and she's doing her influencing thing also and she's a surgeon, of course. But मेरे को उससे नहीं फर्क पड़ता है वो कितना कमा रही है, because I feel being a man, I will take that ownership and वो मेरी responsibility है. That's how I've grown up. I mean, if she's not earning, that's also fine. वो problem नहीं. But बस वही है कि at least till the time we have kids
और हम दोनों we're healthy, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे कि लड़के काम करेंगे और लड़कियाँ काम नहीं करेंगे कि तुम्हें घर पे बैठना है. And of course with how we're spending the money, there can be a discussion अगर दोनों pool in कर रहे हैं resources. And it's just वन थिंग टू ऐड जो मैम ने बोला अभी कि वो लड़का अपने प्ले स्टेशन PSP खरीद रहा था वहाँ पे, एंड वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी. आई थिंक मैन ऑल्सो नीड टू लर्न हाउ टू क्रिएट बाउंड्रीज एंड नॉट बी emasculated बाय द ऑपोजिट जेंडर गोज एनीवेयर. तो रिलेशनशिप में वो बाउंड्री सेट करना एंड टू मेक श्योर दैट वो emasculation नहीं हो रहा है इज सुप्रीमली इंपॉर्टेंट. नॉट इवन आपके हेल्दी रिलेशनशिप के लिए, बट इवन फॉर लिटिल किड्स दैट लाइक अ बॉय व्हेन ही ग्रोज अप ही इज गोना लर्न कि रिलेशनशिप कैसे होता है मेरे माँ बाप के बीच में, दो लोगों के बीच में, या वो वहीं से सीखते हैं देख के कि एक मर्द कैसा होता है या एक आदमी कैसा होता है. एंड वहाँ पे अगर फादर को मदर डांटे ही जा रही है और वो बोल रहा है सो सॉरी ऐसे कान पकड़ के क्योंकि उसने प्ले स्टेशन खरीद लिया है, और एनी छोटी छोटी बातों के लिए, तो वो एक पॉजिटिव रोल मॉडल वहाँ पे नहीं क्रिएट होता है. सो बाउंड्रीज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होनी चाहिए. एंड बस जस्ट बिकॉज यूर मैरिड टू समवन वो कुछ भी बोलेंगे आपको नहीं सुनना चाहिए, कहीं पे तो एक बाउंड्री जानी चाहिए.